جی السلام علیکم. ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جرنلسٹ لوگ جو ہیں وہ گھر کا پکا ہوا کھانا کم کھاتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں بہت برا لگا شروع میں، لیکن بعد میں ہم نے جب غور کیا تو لگا کہ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں. جناب، نیا دن اور نیا سفر. آج کا سفر ہم کریں گے کراچی سے اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد کیوں جانا ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جرنلسٹ کا، ان کی ایک میٹنگ ہے. کوئی لمبا چوڑا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ایک دن ایکسٹینڈ کیا جائے اور یوٹیوب کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے. تو چلیں جناب، شروع کرتے ہیں اس نئے سفر کا آغاز. Please keep the seatbelt fastened throughout the flight till the seatbelt signs are switched off. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you at Islamabad International Airport. The outside temperature is 22 degrees Celsius. السلام علیکم. آپ نے سن رکھا ہے کہ جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یقیناً اب اس بارش کے پانی کو محفوظ کیسے کیا جائے، اس کے لیے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام آباد میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو زیر زمین پانی ہے اس کو ریچارج کیا جا رہا ہے بارش کے پانی سے. تو اسی لیے ہم نے آج وزٹ کیا ہے اسلام آباد کے کچنار پارک کا. یہاں پہ ایک سائٹ ہے جہاں پہ زیر زمین پانی کو ریچارج کیا جا رہا ہے بارش کے پانی سے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. اب اس کی کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ایکسپرٹ سے جو یہاں موجود ہے میرے ساتھ. اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں انجینئر خورشید وصال صاحب سے، جن کا تعلق واٹر ایڈ سے ہے. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم انجینئر صاحب. وعلیکم السلام. سر، مختصر تعارف تو میں نے آپ کا کرا دیا، کائنڈلی اپنا تعارف کرا دیں، اپنی آرگنائزیشن کا تعارف کرا دیں، اور یہ جو سائٹ ہے اس میں جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ادارے ان کا کرا دیں. اس کے بعد ہم آپ سے تفصیلی بات کرتے ہیں. شکریہ. میرا نام خورشید وصال ہے. بیسیکلی میں انجینئر ہوں اور واٹر ایڈ پاکستان میں ایز اے واش مینیجر ٹیکنیکل گزشتہ 2 سال سے کام کر رہا ہوں. یہ جو گراؤنڈ واٹر ریچارج کا پروجیکٹ ہے، یہ بیسیکلی اس کی فنڈنگ واٹر ایڈ پاکستان نے کی ہے، اور اس کے لیے ہم تکنیکی معاونت 2 ادارے ہیں، جس میں ایک ادارے کا نام ایومی ہے، انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ، اور ایک PCRWR جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ان کی ٹیکنیکل معاونت حاصل ہے. جی سر. اچھا، اس سے پہلے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے مزید آپ سے بات کریں، اسلام آباد میں پانی کس طرح سے مینیج ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ اوور آل کیا سچویشن ہے، تاکہ اس پروجیکٹ کی افادیت کے حوالے سے ہمیں آگے چل کے پتہ چلے. جی، اسلام آباد جو کہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 25 لاکھ لوگوں کا ایک شہر ہے، اس کا 70% واٹر کی ضروریات جو ہے وہ 2 ڈیمز جس میں سملی ڈیم اور خانپور ڈیم شامل ہیں ان سے پوری ہوتی ہے، اور 30% پانی کا دار و مدار جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہ زیر زمین پانی کے اوپر ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اربنائزیشن جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلسل اسلام آباد اور راولپنڈی جو جوڑواں شہریں ہیں، اس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف ضروریات بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ جو بلٹ انوائرمنٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی تعمیرات کی وجہ سے زمین کے اندر پانی کی جذب ہونے کی صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اگرچہ اسلام آباد میں آج بھی بارش اتنی ہوتی ہے جو آج سے 70 سال پہلے ہوتی تھی، لیکن اتنا پانی زمین کے اندر جاتا نہیں ہے جتنا پہلے جاتا تھا، اور دوسری طرف بہت زیادہ اس کو نکالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کا سطح مسلسل بہت زیادہ تیزی سے گر رہا ہے. تقریباً 1 میٹر سالانہ واٹر اسلام آباد میں زیر زمین سطح نیچے جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک
इंडिकेटर हैं और आने वाले वक्तों में ये बहुत बड़ा मसला होगा इस्लामाबाद के लोगों के लिए. अच्छा खुर्शीद साहब, एक काम करते हैं कि हम थोड़ा आगे चलते हैं ताकि हम की जो साइट के इसकी विज़िट भी करते चलें और आप अपनी बात को कंटिन्यू भी रखें. जी जी, थैंक यू. अच्छा, इस तरह है कि ये साइट बहुत सारे असेसमेंट के बाद ये साइट सेलेक्ट हो गई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना होता है कि जो पानी पीछे से आ रहा है उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है. फिर जहाँ पे आप ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसमें एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल भी होता है, तो वहाँ पे उस वेल की कैपेसिटी, यानी इस ज़मीन की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि एक ख़ास मकदार में पानी को अंदर जज़ब कर सके, अपने आप के अंदर जज़ब कर सके. ठीक है, तो जब ये सारी साइट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे पहले से एक बरसाती नाला था जो शकरपड़िया एरिया, ये जो मेरे पीछे इलाका एरिया है, वहाँ से पानी बारिश का पानी कलेक्ट करके तो आगे जाके ये आखिर में जाके नाला लाई, जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो हर साल तकरीबन तुग़यानी उसमें आती है बरसात के मौसम में, ये जाके उसके साथ मिलता है. इसके ऊपर हमने ये इस तरह किया कि यहाँ पे ये एक तालाब सा बना दिया और इस तालाब के आगे एक जो है ना एक बंद सा बांध दिया. वो बंद क्या करता है कि वो बंद पानी को रोकता है ताकि पानी एक ख़ास मकदार में पानी इस तालाब के अंदर जज़ब हो जाए. इस तालाब से फिर आगे पानी जो है ना जाता है एक, इसको हम स्क्रीनिंग चैम्बर कहते हैं, स्क्रीनिंग चैम्बर के अंदर जाता है. खुर्शीद साहब, मेरा ख्याल है ये जो बोर्ड है इसके थ्रू हम जो है वो आपसे समझने की कोशिश करते हैं. जी बिल्कुल. ये बेसिकली इस बोर्ड के ऊपर इस सिस्टम की काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. जिस तरह की वो तालाब है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस तालाब में जब पानी जमा होता है तो उससे एक पाइप के ज़रिए ये स्क्रीनिंग चैम्बर में आता है. ठीक है, ये जो पाइप है ये थोड़ा सा बेड लेवल से 15 सेंटीमीटर ऊपर लगा होता है. इसका मकसद ये है कि पहले कुछ इसके अंदर कुछ सैंड पार्टिकल्स या कुछ और कचरा हो तो वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए और फिर पानी आ जाए स्क्रीनिंग चैम्बर की तरफ. इस स्क्रीनिंग चैम्बर में जो मैंने दिखा रहा था आपको कि ऊपर ये सैंड का एक लेयर है, उसके नीचे क्रश का एक लेयर है और इसके नीचे बोल्डर का एक लेयर है और इसके नीचे एक सिस्टम बनी हुई है. तो पानी इन 3 मुख्तलिफ किस्म की मीडिया से फ़िल्टर होके इस सिस्टम में आता है और यहाँ से फिर ये एक पाइप के ज़रिए आता है जो रिचार्ज वेल है उसके अंदर. यहाँ पे एक फ्लोमीटर लगा हुआ है जो कि ये हमें बताता है, जिसका डेटा हमारे पास आता है, जो हमें ये बताता है कि टोटल कितना पानी जो है ना किसी एक मौसम में या किसी टोटल यानी फ्रॉम स्टार्ट टिल नो या किसी एक स्पेसिफिक सीज़न में कितना पानी ज़मीन के अंदर रिचार्ज हो गया. जी, तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें आपको पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 दिन से बारिशें चल रही हैं, तो ये पानी अभी उसके ऊपर जो है ना अभी पानी आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता उसी सिस्टम के जो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर भी दिखा दिया और वैसे भी एक्सप्लेन कर लिया. बेसिकली ये वो स्क्रीनिंग एरिया है जहाँ से पानी 3 मुख्तलिफ़ किस्म की मीडिया से स्क्रीन हो के तो आता है. और जहाँ पर हम खड़े हैं ये बेसिकली वेल चैम्बर है. ये जहाँ हम खड़े हैं, ये दोबारा बताइएगा सर. ये जहाँ हम खड़े हैं ये वेल चैम्बर है, यानी इसके अंदर एक रिचार्ज वेल है, जिस तरह मैंने आपको ड्राइंग में दिखा दिया. तो बेसिकली पानी फिर वहाँ से स्क्रीन होके यानी साफ होके फ़िल्टर होके इस रिचार्ज वेल के अंदर आके ज़मीन के जो वाटर टेबल है उसमें जाके मिलता है. और यहाँ पे एक इसके अंदर फ्लोमीटर लगा होता है जो हमें उसकी टोटल क्वांटिटी रिचार्ज की वो बताता है. तो ये इसके हवाले से है. अच्छा, ये जो अभी आपको पीछे इंस्टॉलेशन नज़र आ रही है, ये एक्चुअली यहाँ पर नीचे एक और वेल है जो उस सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. इसको हम मॉनिटरिंग वेल कहते हैं. ठीक है, और ये क्या है कि ये हमें यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन लगी है. उस मॉनिटरिंग वेल के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसको प्रिज्मीटर कहते हैं, जो हमें ज़मीन के अंदर वाटर टेबल का उतार चढ़ाव बताता है
डेली की बेस पे हमें बताता है। बारिश के बाद हमें पता चल जाता है कि कितना जो है ना बारिश की इस सिस्टम की वजह से पानी कितना ऊपर आ गया या आम दिनों में कितना पानी नीचे जा रहा है, हमें ये बताता है। इसके अंदर और भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जिसको हम डेली बेस पे हम उनका डेटा एक डैशबोर्ड के ज़रिए से कलेक्ट करते हैं रिमोट से, जो हमें ये भी बताता है कि वाटर का टेम्परेचर कितना है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। और ये जो मैंने आपको वहाँ रिचार्ज बिल में बता दिया कि वहाँ एक फ्लोमीटर लगा है, उस फ्लोमीटर का डेटा भी इधर आता है। तो ये सारे डेटा जो है ना एक रिमोट डैशबोर्ड के अंदर जाता है और वहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। इसके अंदर एक ये जो आपको डब्बा सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेन गेज है, यानी हमें ये भी यहाँ पे पता चल जाता है कि स्पेसिफिक इस एरिया के ऊपर रेन कितना हो गया। तो ये सारे इसके जो है ना मतलब मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ये सिस्टम को मॉनिटर इस तरीके से किया जाता है। अच्छा खुर्शीद साहब, आखिरी बात बता दें कि इस्लामाबाद में कितना पोटेंशियल है इस तरह की साइट्स का, और अगर वो उस पर सारों पे काम हो जाए तो कितनी कोई ज़रूरत पूरी हो सकेगी? सबसे पहले तो मैं आपको इसके हवाले से बता दूं कि सिर्फ एक सीज़न में, यानी जो मानसून का सीज़न था 3 महीने, उसमें 19 लाख लीटर ऑफ वाटर जो था ना पानी, ये ज़मीन के अंदर रिचार्ज हो गया था, जो इसके फ्लो मीटर के ऊपर डेटा हमें आ रहा था। और उस वक्त जो है ना उस वक्त उसकी वजह से वाटर टेबल 14 फुट ऊपर आ गया था। अगरचे वो बाद में लेवल हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक उन डेज़ में 14 फुट जो है ना वाटर टेबल वो ऊपर आ गया था। और यानी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इसके हवाले से, इस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुलनेस के हवाले से एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद में इस तरह की एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह की तकरीबन 500 साइटों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का जो टोटल वाटर डिमांड है रेन का, उसके हवाले से जो वाटर टेबल डिप्लीशन है उसको बैलेंस किया जा सकता है। इस एक के बाद ये जो हमने इधर बनाया, तो जो यहाँ जो हुकूमती इदारा है इस्लामाबाद का CDA, इस वक्त जो है ना वो 100 ऐसे और जगहों पे काम कर रही है, जिसमें 60 तकरीबन कंप्लीशन के मराहल में है और 40 पर अभी काम हो रही है। तो ये तकरीबन 101 हो जाएंगी। 500 तक फिगर पहुँचने के लिए हो सकता है हमें 4-5 साल लग जाए, लेकिन ये एक बहुत मतलब पायलट प्रोजेक्ट था और इसकी सक्सेसफुलनेस की रेट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है ना CDA ने और इदारों ने इसके अंदर दिलचस्पी लेना शुरू की। और बहुत उम्मीद है कि हम 500 का फिगर भी आइंदा 4-5 साल के अंदर अचीव कर लेंगे। चलें खुर्शीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वीडियो के लिए हमने और एक्सपर्ट से भी बात की है, जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की है। चलें उनकी राय सुनते हैं। My name is Mohsen Hafiz, country representative for Pakistan and regional representative for Central Asia for the International Water Management Institute. The EB as an international organization, we want to make sure that we are producing the best science, that science is applicable, the outcome is linking towards the policy making in the food security or the climate change or the water, because the water is one of the common phenomenon for all these policies. And that's why we are very proud. This is the first state-of-the-art site in Pakistan, which is telling us that how the nature-based solution could be useful for augmenting the water supply at the local scale. By the successful demonstration of this month, CDA is going for the 100 more sites in Islamabad in collaboration with PCRWR's one, that for further demonstration of the nature-based solution. You see that when Islamabad, and typically there was only rainfall in the 3 months period of time, July, August, September, monsoon season, but in the last couple of years, the monsoon rainfall pattern is changing, and due to climate variability, we have seen last year that there was a heavy rainfall and all those evidences in this year. Typically when the rainfalls are happening and then that water is going, either we don't have enough storage capacity to store that water for the rainfall, and then that water is going down towards the drain system, and then that's creating a flash flooding and all sort of the issues there, particularly in Islamabad, it's another lake. And this site, considering that will be helpful for us for augmenting the groundwater supply through the rainwater harvesting. Just to give you the numbers, we installed the site in May, it was operational, and in October, over the 5-month period of time, it has basically the groundwater was injected around 1.80 million gallons, and that also improved the groundwater quality, and also for the groundwater table was around 4.5 meter was the replenishment of the groundwater for localized recharge.
So to cover up the climate change, which is shocks, either the flood or the drought, so this will be helpful to deal us with the climate change. جی جناب، اس ویڈیو کا بھی اختتام ہوا اور ہمارے اس اسلام آباد کے مختصر ٹور کا بھی اختتام ہوا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں، اور اگر کوئی آپ اس میں کوئی سجیشن دینا چاہیں تو ہم ضرور آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کو کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں باہر کا درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس ہے.